बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए। कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Namaskar Darshako and hello viewers. As we know, the topic for the day is growing and protecting your money in uncertain times. जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वो कुछ अनसर्टेन टाइम्स के कैटेगरी में उसको हम प्लेस कर सकते हैं। एक बार मैं टॉपिक को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। Growing and protecting your money in uncertain times. So you need to protect and as well as grow your money when the time is quite uncertain, quite sort of unviable, where you cannot predict the sense of the future. कुछ ऐसा चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से या आप अपनी मनी को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, सेव करें और उसको इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो इस सिनेरियो में ग्रो भी करे। तो बाय लुकिंग एट दिस टॉपिक वी हैव सम जनरल डिस्कशंस, बिकॉज टेक्निकल डिस्कशंस को समझना और उसको आगे लेके जाना विद इन 30 minutes it's not possible to gauge that thing. So I'll try to cover the various points which are in general. Okay? So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये uncertain times क्या होता है. What is uncertain time? The time which you cannot predict. Why? Because there are certain things worldwide happening is there. Some war situation is there. Some inflation is going at a very galloping rate. So some countries are having some financial constraints like Sri Lanka. So keeping that in view, I'm trying to cover that there are certain things which we need to understand, because the very first objective of a person or an investor is to protect the money, protect the savings. And then after protecting this thing, we have to invest in such a way that it should grow with a minimal risk. As we already know that
risk and return, more the risk, more is the return. But in uncertain times, as we know, if we take risk, there might be certain possibility that we may lose the important capital that we have, hard earned money. So there are certain things which are happening worldwide, like inflation is all time high. Inflation means that the rate of commodities, goods and services are increasing day by day, which are basically not in the control of the economies and the states and the countries because of various reasons. So when inflation is high, what is happening is that we are losing the purchasing power of the money. As we know, dollar versus rupees and other various things. So I am trying to convey that in uncertain times, there are various risks involved in protecting and growing the money. Like, first of all, that we may lose the capital because investing may be in various areas. Like, you can say that in various markets, like it's commodity market, it's stock exchanges, it's real estate market, it's gold, it's foreign exchange market. There are certain markets where we can invest our money, where we can put our money to make it more sort of return thing. I mean to say, if you have to protect the money, first of all, and then by protecting it, you have to put the money forward so as it may grow further. Okay. So I'm not going to the various other parts of the things. So investor has to gauge that the upcoming time is more of riskier. If it is more of riskier, it means it is uncertain time. So investor has to gauge. How he has to gauge? He has to hire certain technical persons, or vis-a-vis, he can also read some newspapers, update himself through various things like what is going in US market, what is going in China market, what is happening globally. Because what is happening globally is directly impact the Indian market. Okay. So first of all, the investor has to have the sixth sense. Sixth sense means he has to understand what the time is going up. I mean to say, he can gauge the things. But there are two things basically. One is that things directly impact India or things indirectly impact India. If things are indirectly related to India, so you have to be very much aware of the global scenario, because the global village, we all are interdependent. If we all are interdependent, we have to be very cautious in terms of things which may gauge the risk. So investor has to be very, देखिए पुराना जो टाइम था जिसमें इन्वेस्टर को इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वी आर नॉट सो मच इंटरडिपेंडेंट. आज जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ऑल कंट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट. लाइक चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके. लेकिन चाइना में जो चल रहा है उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है. जो प्रोडक्शंस हैं वो इतनी स्पीड से नहीं हो रही हैं. डिमांड और सप्लाई में गैप आया है. डिमांड सप्लाई में गैप आने से जो सप्लाई साइड है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट्स की वजह जो है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द China factor, because they are struggling with the COVID, and as well as in various countries like Brazil and other countries where the war is going, Ukraine, Russia, so many things are happening in the world. So supply side पे constraint है, लेकिन demand intact है. अब supply side पे constraint होगा, demand intact रहेगी, तो but obvious है inflation होगा, demand push inflation होगा. अब डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है तो रेट्स बढ़ते हैं तो जो इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो
ख़त्म होती है, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो एक पूरा एक सर्कल, एक विशियस सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से द थिंग्स बिकम वर्स्ट एंड वर्स्ट। तो एक इन्वेस्टर को अगर ये समझना है कि ही हैज़ टू प्रोटेक्ट हिज मनी मीन्स दैट व्हाट ही इज हैविंग मस्ट नॉट गो डाउन। अगर वो नीचे जाएगा तो उसको कैपिटल का लॉस होगा, एंड विजा विज ही हैज़ टू डू थिंग्स विच must enhance his return. So there are two things. First, we have to protect. The second, we have to grow the things. So, having said that, जो सिनेरियो है वर्ल्ड वाइड, लाइक आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ so much of demand of commodities, so much of demand of power and various things, but the supply side is constrained. तो उस सप्लाई के ना बढ़ने से जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उसको कोप अप करने के लिए एक इन्वेस्टर को अगर अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है तो उसको ऐसे सेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जिन सेक्टर्स में इन्फ्लेशन का कोई इतना रीच नहीं है। वैसे ये कहना बहुत आसान है, लेकिन लाइक इन्फ्लेशन में मार्केट्स जनरली नीचे जाती हैं तो आपकी कैपिटल इरोड हो जाती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा समझ आ रहा है या आपका जो एक्सपर्ट है वो आपको बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा होने वाला है, तो आपका इट्स अ ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टर टू अपनी जो कैपिटल है उसको उस मार्केट से निकालें, अगर उस मार्केट में आपकी कैपिटल इरोड होती है, और उसको किसी ऐसे सेफ जगह पे प्लेस करें, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, या कमोडिटी मार्केट्स हैं, या और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपका जो मनी है वो प्रोटेक्ट हो सके। लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट में भी कंस्टेंट क्या है, मनी आपकी प्रोटेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन ग्रोइंग वाइज उसकी जो ग्रोथ है दैट इज़ नेगेटिव ग्रोथ मीन्स आपका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ रिलेटिवली 5 to 6%। 5 to 6% अगर आपका इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन रेट अगर वो आपका 10 to 15% है, या 6 to 10% भी अगर आप उसको लेके चलें, तो आपका मनी ग्रो कर रहा है 6% से, लेकिन इन्फ्लेशन इज ऑन एन एवरेज लेट्स से 8%। तो आपका जो मनी है वो बढ़ने की बजाय इट इज़ -2%। सो इन्वेस्टर हैज़ टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस फैक्ट्स एंड एस्पेक्ट्स so as to understand कि भाई मेरे जो पैसे हैं वो बढ़ने की बजाय कहीं कम तो नहीं हो रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको रोकने के लिए कि वो पैसे कम ना हों, आपको किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ रियल एस्टेट है ऐसा जहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पर आप अपने पैसे को प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर ये श्योरिटी होती है कि आपका पैसा डिमिनिश नहीं होगा, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चलिए डिमिनिश नहीं होगा। अब डिमिनिश नहीं होगा, एक जगह पे प्लेस रहेगा, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि येस माय मनी इज़ प्रोटेक्टेड। जैसे ही आपका मार्केट सिनेरियो ठीक होता है, सब कुछ जनरलाइज होता है, क्योंकि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अपवर्ड्स ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो जो मार्केट ट्रेंड है, एंटायर मार्केट ट्रेंड फ्रॉम रियल एस्टेट, फ्रॉम कमोडिटी, फ्रॉम आपका स्टॉक एक्सचेंजेस, द ट्रेंड इज़ अपवर्ड। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। ये कुछ ना कुछ हर 10 साल में या 5 साल में ऐसा कुछ होता है। जैसे 2008 में आपका सब प्राइम लैंडिंग इशू आया था, तो उसमें पूरी जो है वर्ल्ड वाइड सब जो है फाइनेंशियल मार्केट्स नीचे आ गई थी, लेकिन 2008 के बाद फिर मार्केट संभली, फिर ऑल टाइम हाई पे गई। अब बिकॉज ऑफ द कोविड फिर मार्केट नीचे आई, कोविड के बाद फिर मार्केट संभली, मार्केट संभलने के बाद फिर ये थोड़ा इन्फ्लेशन वाला इशू है, वर्ल्ड वाइड थोड़ा सिनेरियो ख़राब है, वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में बट गया है या 3 पार्ट्स में बट गया है, नेटो कुछ बोलता है, जो आपका रशिया कुछ बोलता है, तो उन सब चीज़ों के कारण मार्केट फिर नीचे आया है। अब मार्केट नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो ख़राब होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो ठीक है, वैसा ही है, वो अपवर्ड्स ही है। ये कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जो एक मीन वाइल 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर को द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टर इज़ टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो ही हैज़ टू
protect his money by placing the money from the sectors which may diminish his money to the sectors which is like quite traditional